Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum class. I hope all of you are good. Today we will discuss about the learned grammar, an article im dative case. Okay, Lektion 16. First, we will learn that what is dative case. The dative case, also known as dative object or indirect object, is a person or a saying receiving the indirect action of a verb. In German grammar, the dative case is marked by changing articles and noun endings. We use the dative case after certain verbs and preposition. Okay, now we'll discuss that what is uh, dative, definite article in dative case, indefinite article in dative case, negative article in dative case. Okay, in German we call it dative, and in English we call it dative case. Okay, the first one example is here: the mother kauft ein Kleid, the mother buy the dress. Now look at the first one sentence and look at the second sentence. The Mutter kauft der Tochter ein Kleid. Got it? Now look at this. The first sentence, the mother is buying a dress directly. So kauft means that the relation between the kauft and Kleid is here directly. The mother kauft der Tochter ein Kleid. Now the Tochter is not present at the time of the buying or purchasing a dress. Got it? So the mother kauft der Tochter ein Kleid. Mother buy the dress for the daughter. The Mutter is here as the object nominative. The Tochter is here the dative article object, and ein Kleid is here object direct accusative. Indirect object like Person, Singular und Plural. Wem kauft Asma eine Suppe? For whom Asma is cooking the soup. Asma kocht dem Mann eine Suppe. Asma is cooking soup for the husband. So look at the first one sentence. Asma is cooking a soup for her husband. So husband is not present at the time of the cooking. So dem Mann is the indirect object. Bestimmte Artikel im Dativ. No, look at the first one, like masculine, feminine, neutral und plural. Nominative der, die, das, die, accusative den, die, das, die, dative dem, der, dem, den. Plus whatever the noun is here, so we have to add at the end and alphabet of the noun. Okay, the definite article im dative case, der Mann convert into dem Mann. Der Weihnachtsmann gibt dem Mann ein Geschenk. Santa gives a gift to the man. Now look at this like Weihnachten gibt dem Mann ein Geschenk. Dem man is not present there. Alright. So Weihnachten is and ein Geschenk is having a direct relationship, and dem Mann is having the indirect relationship. So der Mann convert into dem Mann. Now look at this. Die Frau. Die Frau convert into der Frau. Der Weihnachtsmann gibt der Frau ein Geschenk. Santa gives a gift to the woman. Die Frau convert into der Frau. Des convert into dem. Der Weihnachtsmann gibt dem Kind ein Geschenk. Santa gives a gift to the child. Got it? Now look at this Weihnachten having the relationship directly to the ein Geschenk. Aber dem Kind is not present at the time of giving the gift. So dem Mann is an indirect object here. Die plural convert into den plus n. Der Weihnachten gibt den Kindern Süßigkeiten. Santa gives sweets to the children. Kinder. Look at this. At the end, I add an alphabet with the noun, and the convert into den. Now look at this table, and this table gives you a clear picture about the nominative and dative case. So in nominative, here, there, the, das, the,
And in dative, dem, der, dem, den plus n. Unbestimmte Article. First, we have to understand that what are the unbestimmte article. The unbestimmte article means a or an, ein और eine, ठीक है, और एन जिसमें इंग्लिश में होते हैं. सेम केस है इन जर्मन. Unbestimmte article. First, we'll look at the table like in nominative, ein, eine, ein. In accusative, einen, eine, ein. In dative, einem, einer, ein plus n. Okay, der Gast ein. Er bringt einen Gast das Essen. He brings food for a guest. ठीक है, अब जब पर्सन जो है इनके ही जो है वो जब फूड लेके आया तो वो गेस्ट के लिए लेके आया था, लेकिन गेस्ट वहां पे प्रेजेंट नहीं थे. ठीक है, तो यहाँ पे जो गेस्ट है वो कन्वर्ट हो गया आइनम के अंदर. फगाओ कन्वर्ट हो गया किसमें, आईने में. ए bringt einer Frau das Essen. He brings food for a woman. Die Frau converted into eine Frau. Das Kind converted into ein. Er bringt einem Kind das Essen. ठीक है, he brings food for a child. ठीक है, जो जो चीजें आपके यहाँ पे थी आइन, आइने, आइन के अंदर वो डाटिव के अंदर कन्वर्ट हो गए आइनम, आइनर और आइन. ठीक है, और जो प्लुराल होते हैं उसके साथ हम सिंपल एन ऐड कर देते हैं. ये किसके अंदर, unbestimmte आर्टिकल के अंदर, लाइक एल्टन. ठीक है, unbestimmte आर्टिकल इम्डाटिव. अगर हमारे पास है unbestimmte आर्टिकल तो उसका जो टेबल था वो ये था आइन, आइने, आइन. ठीक है, और जो हमारे पास डाटिव बनेगा वो बन जाएगा आइनम, आइनर, आइनम और एन पे आ जाएगा एन एट द एंड प्लस के साथ. ठीक है, अब नेगेटिव आर्टिकल क्या होता है. नेगेटिव आर्टिकल खाइन, खाइने, खाइन, खाइने, ये आपका नॉमिनेटिव था. और जब यही डाटिव बनेगा तो इसके साथ सिंपल हमने एन पे जो है डेटिव में हमने ई एम ऐड किया. ठीक है, खाइनम, खाइनर, खाइनम, खाइनन. अब एक तरह से हम इसकी जो पूरी समरी है पूरे लेक्चर की वो देख लेते हैं. ठीक है, बिस्टिम्टी, उम्बिस्टिम्टी और नेगेटिव आर्टिकल जो होते हैं. ठीक है, डीएम, डिया, डेम, डेन प्लस एन. उम्बिस्टिम्टी आइनम, आइनर, आइनम. नेगेटिव आर्टिकल खाइनम, खाइनर, खाइनम, खाइनन. ठीक है, अब यहाँ पे इस पिक्चर को आप देखें, ये मैंने नेट से ली थी. तो इस पिक्चर को आप देखो, ये पिक्चर बहुत क्लियर है. ठीक है, लाइक अगर आपके पास देख कैफे इज गुड. ठीक है, कैफे इज मीन्स कॉफी जो है बहुत अच्छी, कॉफी जो है अच्छी है. ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट जो है कंसर्न इनकी कॉफी के बारे में बात हो रही है. ठीक है, कॉफी का आपने आर्टिकल लगाया दिया के साथ, तो कॉफी इज गुड. ठीक है, अब इससे पता लग रहा है कि ये हमारे पास मेल आर्टिकल है. अब कैफे इज गुड. अब अगर हम इसकी अपोजिटिव की बात करें तो अपोजिटिव में जरूरी होता है कि आपके पास फर्स्ट में आपके पास इनकी कोई प्रोनाउन या कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आपके पास वर्ब जो है वो डायरेक्ट आपके साथ एक्शन करे. ठीक है, ड्रिंक है देन कैफे है. ठीक है, आई ड्रिंक कॉफी, सिंपल. ठीक है, अब यहाँ पे इसका कैफे का किसके साथ रिलेशन है, ड्रिंक के साथ, इनके पीने के साथ रिलेशन है. तो जहाँ पे वर्ब आपके साथ डायरेक्ट नाउन का रिलेशनशिप बन जाए, ठीक है, आफ्टर वर्ब, तो वहाँ वो आक्यूजेटिव बन जाता है. और आक्यूजेटिव में हमेशा दो होते हैं. आई मीन एक आपका नाउन या प्रोनाउन वर्ब से पहले या उसके बाद वर्ब के बाद. ठीक है, नाउन या प्रोनाउन जो भी है, इन दोनों का रिलेशन जो है दो यहाँ पे होते हैं. और इसमें वर्ब जो है उसके साथ आपका डायरेक्ट रिलेशन होता है. अच्छा, इश बिन वाह में दिन खफे. ठीक है, जब मैं जो हूँ गेटअप करता हूँ किसके साथ, कॉफी के साथ. मतलब मैं जागता हूँ कॉफी के साथ. अब यहाँ पे कॉफी जो है वो प्रेजेंट नहीं है. ठीक है, मतलब एक वो बंदा जो है बात कर रहा है, इश्मिन वाक में तेम खफे. ठीक है, मैं कॉफी के साथ होता हूँ, मतलब वो बता रहा है किसी को. तो जो चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है हम उसको कहते हैं इनडायरेक्ट. ठीक है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छी आपको समझ आई होगी यहाँ पे मेल की. देयर, देन, देम. ठीक है, अकुजेटिव, ये अकुजेटिव है और ये आपका डाटिव है और फर्स्ट वन जो है आपका नॉमिनेटिव है. अब फीमेल की हम बात करते हैं, लाइक खटसा है. ठीक है, द खटसा इज यूश. ठीक है, the cat is sweet. इश मार्क द खटसा. ठीक है, आई लाइक कैट. हाँ, कि मैं अपनी लाइकिंग जो है मैं बता रहा हूँ. और अब वो पर्सन जो है, अब खटसा किसके साथ रिलेशन है, मार्क के साथ. ठीक है, इश्पीले मिर्दे खटसा. अब जो पर्सन वो ये कहता है मैं अपनी कैट के साथ खेलता हूँ. ठीक है, अब मुझे बता रहा है वो. ठीक है, इश्पीले मिर्दे खटसा. ठीक है, मैं अपनी कैट के साथ खेलता हूँ. मित्र कैट की वहाँ फिजिकल प्रेजेंट नहीं है.
Das Auto fahrt schnell, ठीक है. And ich fahre das Auto gern. Ich fahre mit dem Auto, ठीक है. मैं das Auto fahrt schnell. ये कार जो है वो तेज जो है ड्राइव करती है. Ich fahre das Auto gern, ठीक है. I drive to like this car. Ich fahre mit dem Auto, ठीक है. अब मैं इसी कार के साथ जो था, अब वो मुझे बता रहा है, पर्सन जो मुझे बात कर रहा है वो कहता है Ich fahre mit dem Auto, ठीक है. मैं इस कार के साथ जो हूँ ड्राइव करता हूँ, ठीक है. मीन्स का कार वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, ठीक है. स्टिफ्ट इज इन बूंद. स्टिफ्ट कहते हैं कलर पेंसिल, सॉरी पेंसिल्स को कहते हैं, और बूंद कहते हैं कलर को, ठीक है. स्टिफ्ट जिन बूंद, ठीक है. दीज पेंसिल्स आर कलर्स, मतलब कलर पेंसिल है. इश ब्राउखे दी स्टिफ्ट है, मतलब मैंने जो थी इश ब्राउखे मुझे ज़रूरत है, नहीं आई नीड दी स्टिफ्ट है, ठीक है. मुझे कलर पेंसिल की ज़रूरत है, ठीक है. अब यहाँ पे ये प्लुराल की बात, स्टिफ्ट की बात हो रही है, ठीक है. इश्माल मिर्देन स्टिफ्टन, ठीक है. मैं जो पेंट करता हूँ या मैं जो कलर करता हूँ वो किसके साथ करता हूँ, कलर पेंसिल्स के साथ, ठीक है. यहाँ पे पूरे आपके लेक्चर का निचोड़ है, और आई थिंक इससे ज़्यादा आसान अब हो नहीं सकता. तो मेरा यही था कि आप आर्टिकल्स की सबसे पहले आप जो भी नाउन याद करें ना, तो आपने उसके साथ उसका आर्टिकल जरूर याद करना है. अगर आप कोई भी नाउन याद करते हैं उसके साथ आपको आर्टिकल उसका याद हो जाता है, तो इससे बेस्ट कोई चीज़ नहीं है. आप बहुत आसानी के साथ आगे मूव करते जाते हैं. थैंक यू क्लास, एंड थैंक यू सो मच. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, write in the comment box. Do subscribe, like, and share my channel. Thank you, class. I hope all of you are good. Vielen Dank. Tschüss. Auf Wiedersehen.